Thanks to PES for giving me this opportunity to have a talk on interpretation of TFTs, and more focus will be on the atypical, the discordant thyroid function test. I'm Dr. Matiullah Khan. I'm currently practicing at Shifa International Hospital as consultant endocrinologist and assistant professor of endocrinology at Shifa College of Medicine. The thyroid function tests. We know that the population reference ranges for thyroid hormones are relatively broad. This is in contrast to the narrow individual variations of thyroid hormone in normal subjects. Modest changes in thyroid hormone are associated with marked excursions of TSH. And this change in thyroid hormone is sufficient to render a subject hypo or hyperthyroidism, while this may not be associated with numerically abnormal T4 or T3. And this we call as the subclinical hypo or subclinical hyperthyroidism. We know that the TSH is the frontline screening test for thyroid dysfunction. We order it a lot, and it is very beneficial test as a screening test. But in some cases, if we order TSH as a screening alone, it will result in misdiagnosis. This is one important thing. Along with that, we also should know that the changes in binding proteins will affect the total T4 and total T3, and we should keep that in mind whenever we are ordering. A very simple approach, what test to order and in what place what to order. So this is important that we should remember this thing, what labs we have in Pakistan. We don't have the equilibrium dialysis, which is the gold standard for free T4 or free T3. We don't have that. When we don't have that, then we should rely on the next best step. So during pregnancy, never order a free T4. That's my advice to all the fellows. Never order a free T4. Why? Because free T4 done by the Pakistani analog assays, and these are the best labs, the Shifa or Aga Khan or Shaukat Khanum, but the analog assays will result in a falsely low free T4. While we know that in the first trimester, actually the T4 is rising. So the free T4 should be rising. But this rises only in the equilibrium dialysis, which is not available in Pakistan. What to do now? So for a pregnant patient, we know there is a predictable increase in the thyroid binding globulin, which is due to the predictable increase in the estrogen. We know from 7 weeks onward, there is a 5% increase per week of this total binding globulin. So we should just add that to our reference range, which is of the non-pregnant reference range. आसान लफ्जों में इतना बता दूं कि वही नॉन प्रेग्नेंट रेफरेंस रेंज उठाना है हमने, उसको हमने अपर रेंज को मल्टीप्लाई करना है बाय अ सर्टेन नंबर. अगर वो 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम करना चाहे तो 1.5 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हम लेते हैं. आसान लफ्जों में ये याद रखें. या बहुत डिटेल में जाना चाहते हो, सो फ्रॉम 7 वीक्स ऑनवर्ड आप हर वीक के हिसाब से 5% बढ़ाते जाते हो. 7 वीक्स मीन्स 5% ज्यादा करना है उसको. 8 वीक्स मीन्स 10%, 9 वीक्स मीन्स 15%, 10 वीक्स मीन्स 20%. ये 5 बढ़ाते जाएंगे. 16 वीक्स में वो स्टैटिक हो जाएगा, वहीं पर चलता रहेगा आगे. दिस इज अबाउट द total T4 and total T3. And similarly, we do the TSH test as well. So whenever I'm suspecting in a pregnant patient कि मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, तो TSH, T4, T3, और उस T4 और T3 को मैं अपर लिमिट को 1.5 या 1.3 या 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिपेंडिंग कि किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मैं देख रहा हूं. और TSH को आपने थोड़ा लो करवाना है, यानी कि 4.5 जो TSH है ना, वो 4.0 तक आ जाएगा, जो अपर लिमिट इसका होगा. लोअर लिमिट जो है वो 0.5 से शुरू होता है नॉर्मली, तो ये 0.2 या 0.1 से शुरू होगा नॉर्मल प्रेग्नेंट का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नो अबाउट दिस नॉर्मल रेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू से कि ये एबनॉर्मल टेस्ट है या नॉर्मल टेस्ट. एक प्रेग्नेंट हाइपोथायरॉइड है, उसमें कौन सा टेस्ट करवाना है? जस्ट डू द TSH एंड टोटल T4. नो नीड ऑफ डूइंग T3. आउटसाइड प्रेगनेंसी क्या करना है? For a hyperthyroid or a thyrotoxicosis case, just do TSH, free T4 and total T3.
वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आउटसाइड प्रेगनेंसी भी जो है वो फ्री T3 कभी नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो गलत आएगा, बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। वेरी स्मॉल पोर्शन इज एक्चुअली द फ्री T3 जो कि मेजर नहीं हो पाता है टेस्ट में, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल कीमोल्यूमिनेसेंस एसेस, ECLI, जो शिफा में, आगा खान में होता है, जो एनालॉग मेथड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि बुक्स में लिखा है फ्री T4 अच्छा है तो हमने वो मान ली। फ्री T4 तो चलो मैं मानता हूँ कि वो अच्छा है, फ्री T3 अच्छा नहीं है, उसकी बजाय आप T3 करते हो। इफ यू go for the American Thyroid Association guidelines, clear cut it is written कि do the T3, total T3, free T4 and TSH in someone who is not pregnant, and pregnancy में आप TSH, T4 and T3। अगेन हाइपोथायरॉयड में T3 का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हाइपोथायरॉयड आउटसाइड प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, TSH, फ्री T4। नाउ वंस वी आर क्लियर विद इट, वी फर्दर मूव ऑन। सो थायराइड प्रोफाइल करा लो, ये एक और वर्ड है जो कि आपको नहीं यूज करना चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड थायराइड प्रोफाइल। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए करना क्या चाह रहे हो। आप अकेले TSH करवाना चाहते हो, TSH फ्री T4 हाइपोथायरॉयड के केस में, TSH फ्री T4 टोटल T3 हाइपरथायरॉयड के केस में, या फिर TSH T4 T3 एक प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट को आपने बताना होगा कि मैं ये करना चाह रहा हूं, ताकि वो इजी हो जाए। थायराइड प्रोफाइल का वर्ड यूज करना अवॉइड करें, and teach your medicine जो वे आपके colleagues है as well about this thing. Now, thyroid profile या thyroid function test are usually straightforward. With a combination of thyroid hormone and TSH measurement, you actually confirm euthyroidism, thyrotoxicosis, and hypothyroidism. And that is actually consistent with the clinical status. Sometimes it is discordant. Discordant either किस तरह डिस्कॉर्डेंट हो सकता है, इधर इट इज नॉट फिटिंग विद द क्लिनिकल पिक्चर, or it is the unusual non-physiologic pattern which is called the funny TFTs. In these cases, we should reconsider the clinical picture, alterations in normal physiology, intercurrent non-thyroidal illnesses, or medication uses like, for example, amiodarone या even thyroxine पे है वो, lab assay issues, lab artifacts। हमारे पाकिस्तान में तो इससे भी ऊपर जो है वो गलत लैब्स, वो तो अलग ही बात है, बट इवन अगर लैब अच्छी लैब भी हो, शिफा शौकत खान आगा खान भी हो, फिर भी ऐसे के इश्यूज हो सकते हैं। एंड देन सम रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। Now, interpreting discordant TFTs require a clear understanding of the hypothalamic pituitary thyroid axis, the action, the thyroid hormone action at cellular or tissue level, and diverse array of congenital and acquired conditions with different patterns. Establishing the correct diagnosis is critical. It's very important. And this is based on the careful clinical assessment combined with this lab, radiological, and sometimes genetic testing. If you fail to adapt such structured approach, you may result in incorrect diagnosis and inappropriate management. Whenever a patient comes, we start with the history and examination. What information to consider? Are there signs or symptoms of thyroid dysfunction? Any recent and reliable thyroid function test? So history of previous thyroid dysfunction, or is there a family history of thyroid problems? Is the patient on any multivitamins that contains biotin, which is very important? Is the patient taking any other drug like amiodarone? Is the patient on some chemotherapy like TKIs? So all these are important. History of thyroid hormone replacement. Is the patient on thyroxine? How is the iodine exposure? Then underlying medical conditions, which includes pregnancy, liver, renal diseases, some acute illnesses, or psychiatric illnesses. So are these TFTs discrepant? And then is there any imaging available or not? All these information, based on all these information, we can divide it into, the pitfalls can be divided into pre-laboratory, laboratory, and post-laboratory. So we can be trapped because in the pre-laboratory time, we were not paying sufficient attention to the clinical context. तो प्री लेबोरेटरी में एज को नहीं देखा गया कि एज यानी कि 70 इयर्स का था तो TSH7 वाज एक्चुअली नॉर्मल फॉर दैट पेशेंट, बट हमने उसको एबनॉर्मल लिया, या न्यूनेटल एज को हमने नहीं देखा। साथ में प्रेगनेंसी चेंजेस, जो अभी मैंने इतनी सारी बातें की कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन,
वो कंसिडरेशन दिमाग में नहीं रखी और हमने कहा कि ये तो एबनॉर्मल है। ये जो टीएसएच वैसे ही थोड़ा कम हो जाना था प्रेगनेंसी में, 0.2 नॉर्मल होना था, या फिर जेस्टेशनल ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस को हमने एबनॉर्मल हाइपरथायरॉयडिज्म बना दिया। ये सब लेबोरेटरी से पहले ही वो वाले मसाइल है जो हम कर लेते हैं। पेशेंट थायरॉक्सिन पे है, उस हिसाब से आपने कंसिडर नहीं किया चीजों को। कुछ और ऐसी कंफाउंडिंग मेडिकेशंस थी, उनको नहीं कंसिडर किया गया। कुछ नॉन थायरॉयडल इलनेस चल रहा था, पेशेंट सिक था, आपको उस वक्त चेक ही नहीं करना चाहिए था, थायराइड फंक्शन टेस्ट वो किया गया था। सो ऑल दीज pitfalls will occur at the pre-laboratory level. Then laboratory के level पे जो है वो you are failing to recognize the limitations of the commonly used assays. Assay interference due to many reasons. Now इसमें दो तरह के जो है वो याद रखिएगा assays है। कुछ तो सीमेंस जितने भी हमारे लैब्स है, SIEMENS, जो सीमेंस वाले लैब मशीनरी से बनते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एट्रोफाइल एंटीबॉडीज भी उसी में होती है, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी, ह्यूमन एंटी एनिमल एंटीबॉडी भी उसी में होता है, ह्यूमन एंटी माउस एंटीबॉडीज के इश्यूज भी उसी में होते हैं। बट जो हमारे शिफा में यूज होता है, रॉश का या आगा खान में जो यूज होता है, उसमें यूजुअली ये थोड़ा कम है। बट फिर भी दो तीन ऐसी चीजें जैसे बायोटिन है ना, वो फिर भी वो प्रॉब्लम करता रहता है इसमें। सो लैब ऐसे इंटरफेरेंसेस हमने दिमाग में रखने हैं। वी शुड टॉक टू आवर लेबोरेटरी chemical pathologist, like we have a very good person over here, so we ask them कि ये इसमें लैब एरर का चांस है या नहीं है, ये जरा देख ले। तो वो चीज़ आपको लैब से दोबारा से देखनी है। बट पाकिस्तान में तो फिर एक और मसला ये भी है कि आवे का आवा ही बिगड़ा है कि वो लैब्स ही हमारे माशाल्लाह ऐसे, द मोस्ट कॉमन लैब एरर दैट यू, द मोस्ट कॉमन थायराइड फंक्शन टेस्ट दैट यू विल सी इज अ लैब एरर एक्चुअली। और फ्री T4 थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, TSH नॉर्मल होगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होंगी। तो पहली चीज हमेशा हम ये देखते होते हैं कि इसमें कोई लैब एरर तो नहीं है, और वो लैब टोटली खराब लेबोरेटरी है या फिर वैसे ही ऐसे इंटरफेरेंस हो सकता है। एंड देन उसके बाद वी गो टू द पोस्ट लेबोरेटरी। पोस्ट लेबोरेटरी में कुछ ऐसी बीमारियां होती है, वेरी रेयरली वी सी दीज थिंग्स लाइक TSH ओमास, TSH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, या फिर TSH जो रेजिस्टेंस हो रही है, थायराइड हार्मोन की जो रेजिस्टेंस हो रही है उसकी वजह से। सो ड्यू टू दिस, और देन के देयर कैन आल्सो बी डिसऑर्डर्स ऑफ द thyroid hormone transport or metabolism. Okay, now let's talk about the thyroid function test patterns. We have around 7 patterns that we should understand very well to know about the discordant TFTs and to know about the interpretation very well. First of all, we should know about the normal. The TSH is in the reference range, the free T4 and total T3 are in the reference range. Whenever we have a suppressed or a low TSH with a raised free T4 and T3, this is called thyrotoxicosis. माइंड यू, यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म फौरन ना बोला करें। Thyrotoxicosis is an umbrella term that just tells that there is a raised T4 and T3 but a low TSH. When it is due to the overproduction of thyroid hormone by the Graves' disease or by the toxic adenoma or toxic nodular goiter, only then you call that as a hyperthyroidism. Otherwise, if it is due to thyroiditis or any drug like thyroxine, you don't call it as a hyperthyroidism. Rather, you should call that patient as a thyrotoxicosis, a non-hyperthyroid thyrotoxicosis. So thyrotoxicosis are divided into two. One are the hyperthyroidism thyrotoxicosis, the other are the non-hyperthyroidism thyrotoxicosis. दोनों में बड़ा रिमार्केबल फर्क है, और दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए थायराइड अपटेक स्कैन, द टेक्नीशियम अपटेक स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो ये क्लियर है, समझ आ जाता है हमें कि T4 और T3 ज्यादा है और TSH कम है। और एक और बात, सिर्फ फ्री T4 हो सकता है नॉर्मल हो, TSH कम हो, बट वी शुड डू द T3 एज वेल बिकॉज देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड T3 टॉक्सिकोसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज hypothyroidism. Hypothyroidism is when the free T4 is low and TSH is high. I told you there is no need of doing T3 in a person in whom you are suspecting hypothyroid. Just free T4 करवाया, वो लो आया है, TSH रेज्ड आया है। इसमें एक टेक्निकल थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं रेज करना चाहता हूँ। वो शुरू में भी मैंने थोड़ा इशारा दिया था कि फ्री T4 अभी नॉर्मल रेंज में भी हो ना, थोड़ा सा वो कम होना शुरू हो जाता है, देयर इज अ मार्क्ड एक्सकर्जन ऑफ द TSH और बहुत हाई हो जाता है। वो फॉरन 20, 30, 40 तक पहुंच जाएगा जब फ्री T4 अपने जो रेफरेंस रेंज है उससे डाउन आना शुरू हो जाए।
अगर किसी का फ्री T4 रेफरेंस रेंज से डाउन हो जाए, फ्री T4 नॉर्मल से कम हो जाए, यानी कि 0.8 पे नॉर्मल होता है ना, 0.8 से लेकर 1.7 तक, अगर किसी का 0.6 हो जाए या 0.5 हो जाए फ्री T4, यू एक्सपेक्ट कि TSH कम से कम 50, 60, 70, 100 तक पहुंचे। अगर उसका अभी भी TSH 10, 15 के आसपास हो ना, एक स्टडी के मुताबिक 20 से कम, एक के मुताबिक 10 से कम, कहने का मतलब है 10, 15, 20 के आसपास अभी भी हो, इट इज जनरली नॉट अ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, माइंड यू। ये माइल्ड सा TSH एलिवेशन विद अ वेरी लो फ्री T4, दिस कुड बी अ सेंट्रल। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, मगर ये फर्ज करें ये एक ऐसा सिनारियो हो जाता है, हालांकि देखें ना TSH तो इसमें अच्छा खासा बढ़ा हुआ है ना, बट फ्री T4 कम है। बट उसमें मैंने एक टेक्निकल पॉइंट ये डाला कि TSH कितना बढ़ा हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 50, 60, 70 या 100 तक जाए, ये तो अभी भी 15 पे खड़ा है। ये 10, 15 का TSH विद अ लो फ्री T4 इज अ कॉमन सिनारियो इन अ central hypothyroidism. We will discuss in the question answer as well if you have any question about it as well. ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि यार अगर किसी का TSH लो है या सप्रेस्ड है बट फ्री T4 नॉर्मल है, T3 नॉर्मल है, व्हाट इज दिस सिनारियो? दिस इज जनरली कॉल्ड अ सबक्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। बट रिमेंबर, हमने पेशेंट से हिस्ट्री ली, उन्होंने बताया नहीं भाई मैं तो साथ में न्यूमरकजोल गोली पे हूं। सो इट्स अ वेरी कॉमन सिनारियो दैट वी सी के पेशेंट को आपने न्यूमरकजोल शुरू किया, TSH अभी भी सप्रेस्ड ही है बट फ्री T4 जो पहले 4 या 5 था वो नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मल रेंज में आ गया। इट्स वेरी कॉमन। द TSH टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स 3 months, sometimes 6 months to go up and become normal. So what you follow initially whenever you start a numercazole is you just follow the free T4 and total T3, not the TSH. और उसी फ्री T4 and T3 के हिसाब से आप न्यूमरकजोल के डोज को एडजस्ट करते हो, कम करते हो। अगर मैंने 6 गोलियां शुरू की न्यूमरकजोल on on someone who had a free T4 of say for example 4.0, 4.5, तो अगले विजिट में उसका फ्री T4 नॉर्मल होता है, तो मैं 6 गोलियों से डायरेक्टली 3 गोलियों या 2 गोलियों पे आऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा TSH तो अभी भी सप्रेस्ड है। ठीक है जी। तो ये एक साथ में मैं ऑब्वियसली TFT इंटरप्रिटेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लिनिकली रेलेवेंट बातें हैं। तो सब क्लिनिकल हाइपर या समवन who is recently started on numercazole has still a low TSH but the free T4 is normalized. Someone on steroids on dopamine, स्टेरॉइड और डोपामिन डायरेक्टली जाते हैं TRH को कम करते हैं, जिसकी वजह से TSH कम होता है और आपको सिर्फ TSH ही लो नजर आता है, फ्री T4 और T3 नॉर्मल होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समवन हु इज सिक, again non-thyroidal illness, will have a low TSH, maybe free T4 नॉर्मल हो और T3 यूजुअली उसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट सिनारियो, हियर यू कैन सी TSH ज्यादा यानी कि 9, 10 का है और फ्री T4 नॉर्मल है, दिस वी कॉल द सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। बट इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक पेशेंट जो कि अभी अभी नॉन थायराइडल इलनेस से रिकवर हुआ, रिकवरी फेज के दौरान थोड़ा सा TSH बढ़ जाता है और फिर वो वापस नॉर्मलाइज होता है। ये भी तो हो सकता है कि फ्री T4 वगैरह नॉर्मल है, TSH थोड़ा रेज्ड है और TSH वो हाइपोथायरॉइड का केस था और वो अभी थायरोक्सिन ले रहा था बट वो मेल एब्जॉर्ब हो रहा था, या फिर वो पोर कंप्लायंस की वजह से अभी पिछले दिनों में जरा ज्यादा उन्होंने थायरोक्सिन लेनी शुरू कर दी थी, तो फ्री T4 नॉर्मलाइज हुआ हुआ था। बट TSH को तो टाइम लगता है, महीना या 6 हफ्ते लगते हैं बिकॉज ऑफ दी हाफ लाइफ कि उसको नॉर्मलाइज होने में। तो TSH अभी भी 10, 11 का है और फ्री T4 नॉर्मल है। सो एनी वन ऑन थायरोक्सिन हु इज हाइपोथायरॉइड, वी डू आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ इज द कंप्लायंस। सो ये सिनारियो भी हो गया। नाउ लेट्स गो टू इवन डिफिकल्ट सिनारियोज। द सिक्स्थ वन, फ्री T4 भी लो है और TSH भी या नॉर्मल है या लो है, सब कुछ लो है। इसका मतलब है in this thing we should know about two important things, either non-thyroidal illness or central hypothyroidism. This is the two things that I remembered, but ऐसे interference जाहिर है हर बार हो सकता है। And then the one which I will be explaining in much more detail will be this scenario, TSH का भी ज्यादा होना और फ्री T4 T3 का भी ज्यादा होना, यानी कि सब कुछ थोड़ा सा ज्यादा है नॉर्मल से। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज ऑब्वियसली कि वो वाले दो रेयर बीमारियां तो नहीं है, जो पिट्यूटरी एडिनोमा TSHोमा है वो भी TSH बढ़ गया तो फ्री T4 भी बढ़ गया, T3 भी बढ़ गया। और दूसरा थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस, ठीक है जी, तो उसके पीछे TSH भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस है ना।
आगे वो काम ही नहीं कर रहा है तो टीएसएच बढ़ गया। ये दो तो रेयर है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। लेट्स टॉक अबाउट दैम। So before going there, again, I will be emphasizing on this point that there will be misdiagnosis with exclusive TSH screening. So in conditions like, for example, मैंने अभी डिस्कस किया था thyroid toxicosis treatment पे TSH may remain suppressed even when the thyroid hormone concentration is normalized. TSH ऐसे interferences में non-thyroidal illness में central hypothyroid में या फिर TSH secreting pituitary adenoma या resistance thyroid hormone में इन सब में सिर्फ TSH करवाओगे तो गलत होगा। A stepwise approach to resolving discordant or anomalous thyroid function test. It is divided into three ways. We are resolving this issue जिसमें raised free T4 और T3 था और नॉन सप्रेस्ड या नॉर्मल या रेज्ड TSH है। तो दोनों चीजें जब रेज्ड है, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी रिव्यूइंग इज द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, then investigate the lab interferences, and in the last we will consider the specific conditions. So first of all, how is the clinical context? How is the thyroid status? Is the patient hypothyroid, euthyroid, or hyperthyroid? Is there any intercurrent illness, the non-thyroidal illness causing this problem, or acute psychiatric issues? In the clinical context, we also should remember about the medications used, amiodarone, biotin, or thyroxine, even heparin as well. ये सारे एग्जांपल्स है क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के। आई डोंट वांट टू गो इनटू दीज डिटेल्स। ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हो सकते हैं, iodine, imidron, lithium, TKIs, immune modulators, and all that. A quick word about non-thyroidal illness. It is actually the absence of an intrinsic abnormality of the hypothalamic pituitary adrenal of thyroid axis. It is a secondary adaptive change. We don't even know कि इसका फायदा है, नुकसान है, क्या है, but what changes occur within 24 hours, T3 सबसे पहले कम होना शुरू हो जाता है, उसके बाद TSH भी कम होना शुरू हो जाता है, और अगर बहुत severe disease हो तो T4 भी कम होता है, and this low T4 correlates with less favorable outcome in non-thyroidal illness. In turn T3 कम होता है तो reverse T3 बढ़ जाता है, वो हमारे पास obviously measure नहीं होता है। This is how you know. The precise mechanism is under debate. During recovery वापस thyroid hormones सब normalize हो जाते हैं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा TSH remains elevated. I'm quickly going on these things because time भी थोड़ा कम है, but एक patient जो कि LT4 थेरेपी के ऊपर हो, anomalous thyroid function test कैसे हो सकते हैं? एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिक वेरिएंट है कि फ्री T4 मामूली सा थोड़ा सा रेज्ड हो और बाकी TSH नॉर्मलाइज हो जाए। You can just ignore this scenario. Especially रॉश में जो है वो फ्री T4 थोड़ा सा वो ओवर एस्टिमेट कर देता है, यानी कि 1.7 जो हमने अपर रेंज रखा हुआ है 1.9 और 2 तक भी जा सकता है नॉर्मली। एक तो ये बात है, और दूसरा इसकी वजह एक डिक्रीज डीहाइड्रेशन वजह भी होती है कि फ्री T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ा सा इसलिए फ्री T4 थोड़ा सा रेज्ड होता है। दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिक वेरिएंट। अदर वेरिएंट जिसमें TSH रेज्ड है और फ्री T4 या तो नॉर्मल है या लो है, वो क्या सिनारियो? ठीक है, सो लो नॉर्मल और फ्री T4 थोड़ा सा कम और TSH ज्यादा, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन पे तो है मगर उसका फायदा नहीं हुआ। उसका फायदा तो तभी होना था जब TSH नॉर्मलाइज हो जाता और फ्री T4 नॉर्मलाइज हो जाता। अब फ्री T4 का कम होना, TSH का ज्यादा होना, पेशेंट इज स्टिल हाइपोथायराइड। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? फर्स्ट रीजन इज मैल एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट एम्प्टी स्टमक पे नहीं ले रहे, सो 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है। कोई फूड उसके साथ ले रहा है, लाइक मिल्क ले रहा है उसके साथ, कोई ड्रग्स ले रहा है इंक्लूडिंग अ PPI, इंक्लूडिंग अ आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट, यू हैव टू स्पेस अपार्ट एटलीस्ट 4 आवर्स। तो ये टेक्निकली ये बातें भी हमने सब करनी है प्रैक्टिकली क्लिनिक में। नंबर 2, मैल एब्जॉर्प्शन, सीलिएक डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें हम मेल एब्जॉर्प्शन के लिए जब भी सस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप पूछते हो लैक्टोज इंटॉलरेंस का और सीलिएक के स्क्रीनिंग भी करते हो, बट साथ साथ आप पे एक और तरीका ये होता है कि किसी के डोज 400-500 mcg तक पहुंच गया फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो हम थायरोक्सिन को एडमिनिस्टर करके एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ और ऐसे ड्रग्स है जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं या एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, और कुछ ड्रग्स है जो कि थायराइड हार्मोन की जो बाइंडिंग है वो इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन है या ओसीपीज है। खैर मगर फ्री T4 करवाओगे तो वो तो नॉर्मलाइज आ जाना चाहिए। नाउ कुछ और एनॉमलस पैटर्न्स ऐसे जो LT4 के ऊपर थे, अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ एकदम से, तो
वो क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स पेशेंट थायरोक्सिन से थायरोनॉम पे शिफ्ट हुआ, थायरोनॉम से एल्ट्रॉक्सिन पे शिफ्ट हुआ, सो ब्रांड आपने चेंज यूजुअली नहीं करना होता है, बिकॉज ऑल द प्रिपरेशंस विल नॉट हैव कंपेरेबल पोटेंसी और बायो अवेलेबिलिटी। देन वी ऑल्सो शुड बी नोइंग कि टीएसएच अगर किसी का ज्यादा है, नॉर्मल फ्री टी4 है, तो ये ऐसे इंटरफेरेंस भी हो सकती है। और अगर इसी तरह टीएसएच ज्यादा है और फ्री टी4 नॉर्मल है या लो है या इवन ज्यादा है, तो ये पोर कंप्लायंस से भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द इंटरमिटेंट LT4 इंजेक्शन। कभी लिया कभी नहीं लिया, और जिन दिनों डॉक्टर के पास आ रहे थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्री टी4 नॉर्मल होगा या हाई होगा, बट टीएसएच तो अभी भी हायर है। सो फर्स्ट थिंग वाज कि इनके हमने क्लिनिकल असेसमेंट कर ली। सेकंड इज इन्वेस्टिगेट द लैब इंटरफेरेंसेस। सो इसमें टीएसएच के ऐसे के इंटरफेरेंसेस भी हो सकते हैं और टी4 के भी हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट टॉक टू योर लेबोरेटरी पर्सन। सो इसमें जो है वो हमें ये याद रखना है कि जब भी आपका एनालॉग मेथड काम करता है, वो इस तरह काम करते हैं कि देयर इज अ कैप्चर एंटीबॉडी लाइक दिस, देन देयर इज एन एनालाइट लाइक टीएसएच, एंड देयर इज अ डिटेक्शन एंटीबॉडी। उसके ऊपर एक सिग्नल है जो कि फ्लोरेसेंस ग्लो करेगा। इलेक्ट्रो कीमोलुमिनेसेंस एसेज जो है वो इसको ग्लो करते हैं। अगर ऐसे हुआ कि कोई ऐसी एंटीबॉडी जो कि इस पे लगे और वो ब्रिज करे बिटवीन द कैप्चर एंटीबॉडी एंड द डिटेक्शन एंटीबॉडी, वो इन दोनों को आपस में ब्रिज करे, तो एनालाइट तो बीच में था ही नहीं, टीएसएच था ही नहीं, तो देयर विल बी अ फॉल्स एलिवेशन ऑफ टीएसएच। तो ऐसा ये वाला एंटीबॉडीज के साथ ऐसे मिल जाए, इट कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ increased TSH, although there is no TSH in this. सिमिलरली ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज हो जो ब्लॉक करे इस साइट को, और टीएसएच मौजूद हो, वो बेचारा लग ही ना सकता हो, तो दिस विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव इंटरफेरेंस। देयर इज आल्सो अ फिनोमेना कॉल्ड मैक्रो टीएसएच एसे इंटरफेरेंस। जाहिर है ये रॉश में तो नहीं होगा, ये सीमेंस वाले एसेज में होता है। जैसे मैक्रो प्रोलैक्टिन है, मैक्रो टीएसएच इंटरफेरेंस, फिर इसको डाइल्यूट करना होता है। So you should exclude all the TSH assay interferences by talking to the laboratory, by TSH dilution, pegged precipitation, and all that. But one thing will always be a problem. That is biotin. Biotin is a water-soluble B complex, B7 भी इसको बोलते हैं। Dietary interference कर सकता है। Dietary reference range इसका होता है 17 to 70 mcg। हाई डोज अगर किसी वजह से वो ले रहे हैं, बालों के लिए ले रहे हैं या किसी और वजह से ले रहे हैं, सो इट कैन रिजल्ट इन ऐसे इंटरफेरेंस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने भी हमारे एसेज होते हैं उसमें एक बेस होता है, स्ट्रप्टाविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स होता है, उसके ऊपर फिर एंटीबॉडीज आकर लगते हैं। तो बायोटिन आपने उसमें दे दिया, तो दो तरह के जो एसेज है, कॉम्पिटिटिव एसे और सैंडविच एसे। कॉम्पिटिटिव एसे में देर विल बी फॉल्सली इंक्रीज लेवल, एंड सैंडविच एसे में देर विल बी फॉल्सली डिक्रीज लेवल। मजे की बात है, टीएसएच इज अ सैंडविच एसे, तो उसमें लो होगा टीएसएच, और फ्री टी4 और थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज हाई होंगे। सो अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर ग्रेव्स डिजीज। एक टीएसएच का कम हो जाना, फ्री टी4 का ज्यादा होना, ट्रैप का ज्यादा होना, आप कहेंगे इसको तो क्लियर कट ग्रेव्स डिजीज है, मरीज को कोई सिम्टम नहीं हो रहा है। ऑलवेज लुक फॉर बायोटिन। So after going through the assay interferences, then you consider कि raised free T4 हुआ है या raised free T3 हुआ हुआ है, या दोनों चीजें रेज हुए हुए और TSH अभी भी नॉर्मल है, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? जाहिर है रेज फ्री T4, रेज फ्री T3, ये सब कुछ एमिड्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमिड्रॉन के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि इफ यू नो एमिड्रॉन यू नो थायराइड। इट इज जस्ट लाइक इफ यू नो सिफिलिस यू नो मेडिसिन। तो एमिड्रॉन हाइपो भी कर सकता है, हाइपर भी कर सकता है, थायरोडाइटिस भी कर सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यू टू इंक्रीज अपटेक भी कर सकता है, तो ये सब कुछ करता है। तो इस तरीके से वो हो सकता है फ्री T4 जो है सिर्फ रेज्ड और T3 इतना रेज्ड ना हो, बिकॉज वो कन्वर्जन नहीं करवा रहा, और TSH उसमें हो सकता है नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो। बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी का फ्री T4 T3 दोनों रेज्ड हो और TSH भी नॉन सप्रेसेबल हो, यानी कि रेज्ड हो, तो रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन स्पेशली बीटा जो रिसेप्टर्स है वो, या फिर टीएसएच सिक्रीटिंग एडिनोमा थायरोट्रोफिनोमा, these are the two important things you have to distinguish between them. It's difficult to distinguish between them on clinical grounds only. They both are rare and they have a very different manifestations. डिपेंड करता है किन रिसेप्टर्स पे ये लग गया। एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, डिफरेंट तरीकों से करते हो। लाइक अल्फा सब यूनिट जो है वो रेज्ड होगा एज कंपेयर टू
the ratio of the TSH. So alpha subunit ratio बड़े में होंगे TSH में. Sex hormone binding globulin, किसी ने मुझसे ये सवाल पहले भी पूछा था, it has limited role. T3 suppression can actually differentiate, but unfortunately we don't have that. TSH response to IVTRH can differentiate, but unfortunately we don't have that. What we have a pituitary imaging, we can do that. 85 to 90% में तो हम डिटेक्ट कर लेंगे. इसके साथ साथ ट्रायल ऑफ SRL, आप जो है वो SRL देकर पता लगा सकते हो कि पिट्यूटरी एडिनोमा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा. एंड अगेन जेनेटिक्स किसी तरीके से आ खान के थ्रू आप भिजवा सकते हो, 80% केसेस में वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे. तो इसको लुबे लुबाब में अगर हम ले ले तो वो यही है कि एलिवेटेड फ्री T4 T3 जब भी हो विद डिटेक्टेबल TSH, first you confirm this free T4 free T3 either by equilibrium dialysis which is not available, and then by either by a two step method. Two step method का मतलब ये है कि उसमें डाइल्यूशन का भी फैक्टर हुआ और वो उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो भी निकल गया. ये लैब के जरिए ये हो सकता है. Then you confirm this linearity of TSH assay in dilution. You exclude the confounding drugs, you exclude the intercurrent illness. फिर आप कहते हो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम अभी भी फ्री T4 T3 ज्यादा है, TSH भी ज्यादा है, तो थायरोट्रोफिनोमा और RTH जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मल्टीपल काम हो सकते हैं. आप जीन सीक्वेंसिंग करा सकते हो, जाहिर है वो म्यूटेशन होंगी इन द रेजिस्टेंस केस. SHBG मैंने कहा था ये दिस इज नॉट रिलायबल. और ASU अल्फा सब यूनिट टू अल्फा सब यूनिट TSH जो मोलर रेशियो है वो रेज्ड हो जाता है थायरोट्रोफिनोमा में. द TSH रिस्पॉन्स टू TRH इज exaggerated in the resistance case. Similarly, LT3 suppression टेस्ट कर सकते हैं जिसमें fully suppress हो जाएगा in the resistance case, and also response to depot SRL or pituitary adenoma. So this is the summary कि जब भी डिस्कॉर्डेंट TFTs आ जाए हमारे पास, रीइवैल्यूएट द क्लिनिकल हिस्ट्री, एज स्पेसिफिक कोई इश्यूज तो नहीं है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कोई इश्यूज तो नहीं है, कंसिडर करे दैट. देन थायरोक्सिन पे मरीज है तो कोई कंफाउंडिंग डाइटरी फैक्टर, मेडिकेशंस, या फिर कोई मेल एब्जॉर्प्शन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके साथ साथ नॉन कंप्लायंस. कुछ कंफाउंडिंग ड्रग जैसे इमेड्रॉन, हेपरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये कंसिडर करने हैं हमने साथ में, और इसके साथ साथ नॉन थायरॉयडल इलनेस. After all these things, then we go to assess the patient hypothyroid state में है, hyper है, या फिर euthyroid है, and which TFT is discordant. उस हिसाब से हम reconsider, उस हिसाब से करते हैं लैब से assay interference. And in the last, once everything is ruled out, then we go to the rare genetic and acquired disorders. Thank you so much.